गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट हमने देखा था लर्निंग कर्व रेशो और एप्लीकेशन इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग कर्व। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग कर्व। नॉलेज ऑफ लर्निंग कर्व कैन बी यूजफुल बोथ इन प्लानिंग एंड कंट्रोल। Standard cost for new operation should be revised frequently to reflect the anticipated learning pattern. Its main use are as follows. इसका जो main use है वो इस तरह से है। क्या कहाँ पर ये अप्लाई किया जाएगा, कहाँ पर इसका एप्लीकेशन हम कर सकते हैं लर्निंग कर्व को, आज हम ये देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले इसके ये आप देखेंगे यहाँ 5 और लगभग 9 के करीब हेडिंग्स हैं। तो आज हम देख रहे हैं फर्स्ट है इसमें हेल्प टू एनालाइज CVP रिलेशनशिप ड्यूरिंग द फैमिलियराइजेशन फेज। ये CVP क्या होता है ये देखेंगे अब हम। लर्निंग कर्व help to analyze cost volume profit relationship. CVP means cost volume profit relationship during product or process, and thus it is very useful of cost estimate. The company can set low price of its product to generate high demand. As the production increase, cost per unit drop. Next in budgeting and planning, incorporation of the learning curve introduce new complexity and soft process of budgeting and profit planning. Budget experts select those costs which reflect learning effect, and then he should be able to incorporate thus effect in process of developing budgets or it is exercise relation to project planning. Next है इसमें helps is pricing decision. In pricing decision, the main impact of learning curve is providing better cost predictions to enable price quotations to be prepared or potential order in particular. The company can fix a lower price for repeat order. A forecast of cost reduction due to learning curve will enable suitable price reduction of secure more order. In the case of new product, learning curve effect will provide unbeatable lead over competitors because reduction in price based on learning curve effect will further increase the volume and market share. Next है help of design makers. It helps design maker to make decision based upon expect predictable for past experience rate of improvement. Next है help in setting standard. The learning curve is useful in setting standard in learning phase and in performance evaluation. Next है helps in price negotiation. It is very useful to government in negotiation about the contractors. Generally the cumulative average unit cost for all the units to be produced for a given contract as the base of deciding bid price.
Government receives full advantage of decreasing unit cost of establishing the contract price. Next है इसमें helps in reducing direct labor cost. The learning curve has maximum application to the person who are directly engaged in labor operation. Next है helps in reducing supervising cost. When supervisory and overhead costs are related to direct labor, they respond to learning effect. Next helps in reducing rejects and defects. With experience, worker learn to work not only more efficiently and quickly, but more carefully and skillfully. Thus, learning curve is helpful in reducing reject and defect product. Learning curve enjoy wide application to suppose luck to experience in performing an activity. It is therefore applicable to new activity as well as all activities that has been interpreted and requiring learning. तो ये हमारा एप्लीकेशन था कि कहाँ हम यूज कर सकते हैं इसको देखेंगे एक बार जल्दी से फास्टली सीपीवी पे, यानी कि कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट का रिलेशन रहता है सीधा डायरेक्ट लर्निंग कर्व से, क्योंकि उसकी तरह से हम कॉस्ट को, वॉल्यूम को और प्रॉफिट को एक दूसरे से रिलेटेड कर सकते हैं. नेक्स्ट इसका बजट और प्लानिंग में हम इसके हेल्पफुल कर सकते हैं. बजट और प्लान करने में पूरा हेल्प रहती है. कोई भी हमें बजट बनाना हो, कोई भी हमें प्लान करना हो, वो इसके थ्रू कर सकते हैं. प्राइसिंग डिसीजन इसका मेन फैक्ट, इसका एप्लीकेबिलिटी है. प्राइस डिसीजन मेन सोर्सेज होता है. जब तक हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस नहीं डिसाइड कर सकते तब तक हमारा प्रोडक्ट नहीं बिकेगा. प्राइस की बेस पर ही हमारा प्रोडक्ट बिकने की कंडीशन होती है. नेक्स्ट है डिज़ाइन मेकर के लिए बहुत यूज़फुल होता है कि डिज़ाइन मेकर उसको किस तरह से देखते हैं. नेक्स्ट है सेटिंग अप्रोच क्या है हमारी, उसको देखते हैं कि सेटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, सेटिंग कैसे हम कर रहे हैं, हमारे स्टैंडर्ड्स पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उसको देखते हैं. हेल्पफुल प्राइस नेगोशिएशन, जो गवर्नमेंट होती है वो अपने कॉन्ट्रैक्टर से प्राइस को नेगोशिएट कर सकते हैं कि कितना वो काम करा रहे हैं, उस हिसाब से कितना नेगोशिएट वो कर सकते हैं. नेक्स्ट हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे उसको बढ़ा सकते हैं, ये हम लर्निंग कर्व में देख सकते हैं. नेक्स्ट हेल्प इन रिड्यूसिंग सुपरवाइजिंग कॉस्ट को भी हम इसमें इसे रिड्यूस किया जा सकता है. और नेक्स्ट जो भी रिजेक्ट एंड डिफेक्टिव पीस हमारे यहाँ निकलते हैं उसकी कॉस्ट को भी हम कर सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं, उसके थ्रू हम इसका रिडक्शन कर सकते हैं. अगर इसका रिडक्शन नहीं हो पाता है तो हम इसका रिडक्शन लर्निंग कर्व्स की हेल्प से इसका रिडक्शन किया जा सकता है. तो यही हमारे इसमें 8-9 पॉइंट है. तो एक बार दोबारा फास्टली सीपीवी, सीवीपी यानी कि कॉस्ट वॉल्यूम प्राइस या प्रॉफिट, फिर बजटिंग प्लानिंग, प्राइस डिसीजन, डिज़ाइन मेकर, सेटिंग स्टैंडर्ड्स, प्राइस नेगोशिएशन, डायरेक्ट लेबर रिड्यूसिंग और सुपरविजन कॉस्ट रिड्यूसिंग, और लास्ट में है इसका रिड्यूसिंग ऑफ रिजेक्ट्स एंड डिफेक्टिव आउटपुट्स. इस तरह से रिड्यूस कर सकते कर रहा है. इसके बाद नेक्स्ट में हम इसको जो हमें देखना है वो हम देखेंगे यूज़ ऑफ लर्निंग कर्व, कैसे हमें इसका यूज़ करना है और इसकी लिमिटेशंस. ये नेक्स्ट वीडियोस में देखने के बाद उसका बाद हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को
फिलअप करेंगे, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं जो कि करने बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में देखें।